Good morning, friends. Today we are going to start with a new topic, that is a discharge of a contract. Now, what do you understand by discharge of contract is contract is assumed to be finished. Now, contract can be finished by both the parties have performed their respective promise, they have given their performance, then it is called as a discharge. However, there are certain other circumstances also in which the contract will be assumed to be discharged, that we are going to cover under this particular unit. On your screen you can refer this. Discharge of a contract. Now, what does it mean? Discharge of a contract means termination of contractual relation between the parties to a contract. It means that there is a termination of contractual relation. Termination means end, completion of a contractual relation. Whatever promises they have made, that has been terminated. That is called as a discharge of a contract. Where the rights and obligation arising out of a contract are extinguished, the contract is said to be discharged or terminated. The rights and obligation are cancelled or finished or ceased, then it is called as a termination or it is called as a discharge. Now, how the contract will be discharged? These are the different manner in which the contract will be assumed to be discharged, and that is a course of study for today. What they are given? A contract may be discharged in any of the following ways. Now, first one is a performance, actual or attempted. Now, what do you understand by performance, actual or attempted? Actual means when the party has performed their respective promise, it is called as an actual performance. Attempted performance means when the party is trying to fulfill the promise. This we have already referred in the previous lecture, but here we are going to see in detail. Attempted performance is also called as a tender. इसका मीनिंग ये है कि अगर अ पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेकेंड पार्टी उसको चांस नहीं दे रहा है उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. देन देयर इज अ म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट. पार्टीज विद द म्यूचुअल कंसेंट दे मे डिसाइड दैट के दो दे हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दे डिजायर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. दे फील दैट के म्यूचुअली विल नॉट परफॉर्म दिस प्रॉमिस and both the parties are not going to take each other to the court of law. They mutually agree to cancel the contract. Then if you cancel the contract mutually, it is also called as a discharge. Then there is a lapse of time. काफी टाइम हो गया प्रॉमिस देने के बाद और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है या नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ lapse of time and contract will be discharged. However, in this case you can see that the party who has suffered from lapse of time for non-performance, then the aggrieved party will be entitled for compensation. By operation of law means in some of the cases law will say that you don't have to perform the contract even though you have entered into a contract, even though you have made a promise, but the law will tell to you that वो contract perform करने की जरूरत नहीं है. तो these are some of the circumstances. Or you can say that where the contract is of expertise nature and there is a death of the promiser, so by operation of the law the contract will be cancelled and discharged. By subsequent or supervening impossibility or illegality, that means when the contract was entered at that time it was possible, लेकिन contract entered होने के बाद performance has become impossible. Supervening impossibility means on account of certain supernatural power or on account of certain circumstances which makes the party impossible to perform the contract. और there may arise certain illegality, यानी जब contract entered किया था जब वो legal था, लेकिन बाद में कुछ इलीगैलिटी की वजह से
जैसे कि सेल ऑफ लिकर का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज वैलिड. लेकिन आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द रूल हैज बीन पास और लॉ हैज बीन पास बाय द स्टेट और अ कंट्री दैट यू कैन नॉट सेल द लिकर. So after the contract has been entered into, it has become impossible on account of illegality, and the contract will be assumed to be discharged. Then there is a breach of contract. Breach of contract is again two types. One is an actual breach and one is an attempted breach. That detail we are going to see. Breach means party promise करने के बाद अगर अपना promise पूरा नहीं करता है तो that is called as a breach. And if there is a breach, the contract will be assumed to be discharged. Again, the aggrieved party will be entitled for compensation that we are going to refer to today. So we'll start in detail the different kinds of discharge. First is what they have given. Discharge by performance. Now what do you understand by performance? के सिंपल मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस के पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो देन इट इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मेंस. एंड इफ इट इज परफॉर्म ऑब्वियसली द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अज्यूम्ड टू बी डिस्चार्ज. बट देयर इज वन मोर परफॉर्मेंस दैट इज कॉल्ड एज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दैट वी आर गोइंग टू रिफर टुडे. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट performance of the contract is the principal and most usual mode of discharge of contract. Performance may be actual performance and attempted performance, and attempted performance is also called as a tender. However, this tender is different from the tender which we have seen कि गवर्नमेंट अगर लोगों से कोई टेंडर मंगवा रहा है, that is they are asking the people to submit a tender, that is to give their offer, and then the government will decide which offer to be accepted. So that tender is different from this tender. Here the tender means a party is trying to fulfill the promise but the other party is not allowing him, so that is called as a attempted performance or a tender. Now what it has been given: a written or a formal offer to supply of the goods or to do a job for an agreed price. Now here, a written or a formal offer to supply of goods or to do a job for an agreed price. Here means what? Here it has been said in relation to के party goods supply करने के लिए तैयार है. Here offer, that particular tender is what के government ने लोगों से offer मंगवाया है. So that is also an offer. But here that offer means what? कि you have entered into a contract or one party is now offering to perform his promise. कि जो contract में entered हुआ है, जो promise मैंने दिया है, now I am ready to perform my promise. So that is called as a tender, or it is also called as an attempted performance. We'll see this in detail. What they have given? Actual performance. When each party to a contract fulfill his obligation arising under the contract within the time and the manner prescribed is amount to actual performance of the contract, and contract comes to an end or stand discharged. It is very simple. Actual performance का simple meaning है कि parties ने contract entered किया. I want 100 bags of sugar and the price fix is rupees 1 lakh. तो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हुआ है 100 bags of sugar for rupees 1 lakh. You have supplied sugar, I have given you rupees 1 lakh. Both the parties has performed the promise, that is called as an actual performance. But if one party only perform his promise, he alone is discharged. Such a party gets a right of action against the other party who is guilty of breach. Now here in these circumstances, it has been said that कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर देता है दूसरा नहीं करता है तो वन पार्टी के बिहाफ पे इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, अदर पार्टी के बिहाफ पे इट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस. तो ब्रीच का केस आगे देखेंगे. तो एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, उसके साइड से परफॉर्मेंस पूरा हो गया, दूसरे के साइड से पूरा नहीं हो रहा है, तो जिसने परफॉर्म कर दिया he will assume that के other party is not interested in performing his promise. So he can take the other party to the court of law and recover the price of the contract which he has completed, and together with that he is also going to file a case for compensation. Just a moment.
सेकेंड वन इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का सिंपल मीनिंग है कि पार्टी इज रेडी टू परफॉर्म। You and I have entered into a contract, for example. I am going to supply 100 bags of sugar and you are going to give me rupees 1 lakh. Now the thing is, after entering into the contract, मैं आपके पास 100 bags of sugar लेके आया और मैं आपको बोल रहा हूं कि गुड्स की डिलीवरी आप ले लो और 1 लाख रुपए दीजिए। Now you are not taking the delivery of the goods. So here I am attempting to give my performance. I am attempting to fulfill my promise. जो मैंने promise दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो मैं promise पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप उस promise को पूरा करने नहीं दे रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि 100 bags of sugar आप ले लो, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, तो this is called as an attempted performance. Fine? तो मेरे बिहाफ पे इट विल बी अज्यूम दैट कि मैं रेडी हूं परफॉर्म करने के लिए, तो क्या मैं वेट करता रहूंगा कि कभी ना कभी आप उस 100 बैग्स ऑफ शुगर को एक्सेप्ट करोगे? आंसर इज नो। मेरे साइड से इट विल बी अज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिश एंड आई एम गोइंग टू हेल्ड यू लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इट हैज बीन गिवन, when the promiser offered to perform his promise under the contract but is unable to do so because the promisee does not accept the performance, it is called as an attempted performance or tender. Thus tender is not actual performance but it is only offered to perform the obligation under the contract. A valid tender of performance is equivalent to performance when the contract comes to an end. What it has been said that कि अगर promiser अपना promise पूरा करने तैयार है लेकिन प्रोमिसी उसको पूरा करने नहीं दे रहा है, तो व्हाट विल बी द आउटकम? इसका आउटकम क्या होगा? प्रोमिसर के साइड से यह अज्यूम किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट उसके साइड से पूरा हो गया, दो उसने पूरा नहीं किया, लेकिन यह अजम्पशन क्या होगा कि प्रोमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार था लेकिन प्रोमिसी उसको पूरा करने नहीं दे रहा है, तो प्रोमिसर विल अज्यूम दैट कि उसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया एंड ही विल हेल्ड प्रोमिसी लायबल फॉर नॉन परफॉर्म। जैसे कि इन अवर एग्जांपल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी दैट यू आर गोइंग टू गिव मी रुपीज 1 लाख एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 100 bags of sugar. I am trying to deliver 100 bags of sugar but you are not taking the delivery of those goods. तो मैं ये शुगर लेके कब तक आपके लिए वेट करूंगा? It is not possible कि I am going to wait you for a month or 2 months or a year that कभी ना कभी तो आप लोगे, not like that. It will be assumed that कि आप interested नहीं हो वो लेने के लिए, तो मेरे साइड से ये assume किया जाएगा कि मैंने अपना promise पूरा कर दिया। Why? It will be assumed that मैंने promise पूरा कर दिया क्योंकि मैं attempt कर रहा था अपना promise पूरा करने के लिए लेकिन आप पूरा करने नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए assume किया जाएगा कि मेरा promise पूरा हो गया and I am going to file a suit against you for recovery of price of that particular sugar. मैं कोर्ट में ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट डालूंगा कि आप उसको फोर्स करिए कि ये शुगर बैग्स वो ले और मुझे अपना 1 लाख रुपए दे, और इसमें अगर मेरा कोई खर्चा हुआ है ये सब चीजों के अंदर तो वो कॉम्पेंसेशन के लिए भी मैं कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट डालूंगा आपके खिलाफ। तो दिस काइंड ऑफ ए परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। Attempted performance is also a part of discharge of contract. मगर ये सब चीजें करने के लिए अगर मैं कोर्ट में रिक्वेस्ट डालता हूं कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने तैयार हूं लेकिन ये सामने वाला पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं करने दे रहा है, तो इसलिए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा पैसा उस पर्टिकुलर 100 bags ऑफ शुगर में अटक गया है एंड आई वांट दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द अदर पार्टी। तो ये दुहार लगाने के लिए ये पर्टिकुलर प्लेंट ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कोर्ट में डालने के लिए क्या चीजें एसेंशियल है, यानी कोर्ट मेरे साइड कब लेगा, कोर्ट मेरा बाजू कब लेगा, तो उसके अंदर बोला गया है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस विल बी अज्यूम दैट द पार्टी हैज परफॉर्म द प्रॉमिस इफ the following conditions which has been given on your screen are satisfied. Now what has been given over there? Essentials of valid tender. Essentials of valid tender यानी आपकी दुआर आपकी रिक्वेस्ट कोर्ट कब मानेगा अगर ये सब चीजें जो यहाँ दी हुई है वो फुलफिल हो रही है। कोर्ट बोलेगा हाँ ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रही है, प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करने तैयार है, प्रॉमिसी इज एट डिफॉल्ट,
प्रोमिजी इज लायबल। प्रोमिजी को वो डांटेगा, वो डांट लगाएगा और बोलेगा कि आप इनके पैसे दो, वहां से शुगर बैग्स उठाओ, उठाना है उठाओ, नहीं उठाना है मत उठाओ, लेकिन 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और उसके साथ ये पर्टिकुलर अमाउंट का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपने लेट किया। लेकिन ये रिक्वेस्ट कोर्ट प्रोमिजर की कब मानेगा? जब ये कंडीशंस जो आपके स्क्रीन पे दी गई है वो सेटिस्फाई होती है। व्हाट आर दोज कंडीशन? A valid tender of performance must fulfill the following condition. It must be unconditional. It must be unconditional यानी प्रोमिजर अगर अपना प्रॉमिस पूरा करने तैयार है तो उसने उस प्रॉमिस के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि यू आर गोइंग टू ब्रिंग 100 बैग्स ऑफ शुगर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। आपने मुझे बोला कि शॉप पे इसकी डिलीवरी दो और 1 लाख रुपए लेके जाओ। अब मैं 100 बैग्स ऑफ शुगर जलगांव में लेके आया हूं, मैं एजेंटा चौफुली पे खड़ा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, आपको इसके डिपो पे डिलीवरी लेना पड़ेगी, मैं आपके शॉप पे डिलीवरी नहीं लूंगा। तो यहां पे क्या हो गया? प्रोमिजर अब कोई कंडीशन अटैच कर रहा है वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए, तो देन the promise is not entitled to accept that condition. So here there is a conditional performance from the side of the promiser. तो promisee में reject that particular acceptance. तो वो बोलेगा नहीं मैं एक्सेप्ट करने तैयार नहीं हूं। तो इस केस में कोर्ट प्रोमिजर का साइड नहीं लेगा। कोर्ट बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, वाई यू हैव अटैच्ड द कंडीशन। जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर्ड हुआ था कि आप 100 बैग्स ऑफ शुगर उसके शॉप पे दोगे, तो नाउ व्हाई यू हैव अटैच्ड द कंडीशन। तो कोर्ट मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानेगा एंड इट विल से दैट कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इन दैट सर्कमस्टेंसेस आई विल बी लायबल फॉर डिफॉल्ट एंड प्रोमिजी विल नॉट बी लायबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का, कि प्रोमिजर ने कोई कंडीशन अटैच नहीं करना चाहिए आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ऑब्वियसली अगर प्रोमिजर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। 100 बैग्स ऑफ शुगर में लेके आया रात में और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको अभी आपको इसकी डिलीवरी लेना पड़ेगी, या आपको बोल रहा हूं कि इसकी डिलीवरी आपने जो प्लेस फिक्स किया है उससे दूसरी जगह लेनी पड़ेगी, तो ये प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम नहीं हुआ। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस प्रोमिजी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिजर। इन दैट केस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो अगर प्रोमिजर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है तो कौन सी जगह और कौन से वक्त पे देना चाहिए? वो बोल रहा है प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम। और प्रॉपर टाइम में ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूजुअल बिजनेस आवर इज अ प्रॉपर टाइम। थर्ड क्या बोल रहा है? It must be whole obligation contracted for and not only of the part. 100 bags of sugar का प्रॉमिस पूरा हुआ है तो 100 bags of sugar एक साथ मुझे आपको उसका परफॉर्मेंस देना है, डिलीवरी देना है। मैं पार्ट में परफॉर्मेंस दे रहा हूं। मैंने आपको फोन किया और मैंने बोला कि हाँ 100 bags of sugar का प्रॉमिस तो हुआ था, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ टू डिलीवर 100 bags, तो आई हैव ब्रॉट 20 बैग्स, आप 20 बैग्स ले लो, बाकी के 80 बैग्स का मैं देखता हूं बाद में सेंड करूंगा। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस प्रोमिजी इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोमिजर। देन इन दिस केस प्रोमिजर कैन नॉट से दैट कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैं तैयार था। वहां पे कोर्ट मेरा साइड नहीं लेगा बल्कि कोर्ट प्रोमिजी का साइड लेगा और बोलेगा कि प्रोमिजर इज एट डिफॉल्ट, क्योंकि प्रॉमिस करने के बाद उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। If the tender relates to delivery of goods, it must give a reasonable opportunity to the promisee for inspection of the goods. In some of the cases, there is necessary for the verification of the goods. जैसे 100 bags of sugar यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, तो you are entitled to verify those bags in order to ensure yourself कि जो क्वालिटी बोली गई थी, जो क्वालिटी प्रॉमिस की गई थी, वही क्वालिटी का माल मैं आपको दे रहा हूं। तो ही इज एंटाइटल्ड टू वेरीफाई, ही इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द गुड्स। तो प्रोमिसी शुड बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट और वेरीफाई द गुड्स, चेक द गुड्स
मैं आपको वो आपके राइट से रिफ्यूज नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता हूं उसमें चेक करने का क्या है, आपको लेना हो तो लो 100 बैग्स में लेके आए, यू विल हैव टू डोंट वेस्ट माय टाइम, यू डोंट, आई विल नॉट अलाउ यू टू इंस्पेक्ट द गुड्स। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो अगर मैं गुड्स की डिलीवरी दे रहा हूं तो आई शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द प्रोमिसी टू इंस्पेक्ट द गुड्स। इफ आई डोंट गिव दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी देन आई विल बी एट डिफॉल्ट, then it cannot be said that there is an attempted performance. Then it must be made by a person who is in a position and is willing to perform the promise. Now the performance should be given either by the promiser or any person who is an agent of the promiser, जिसको promisee ने authorize किया है। That means promiser ने appoint किया है और प्रोमिसी उस एजेंट से एक्सेप्टेंस लेने के लिए तैयार है, परफॉर्मेंस लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस प्रोमिसर ऐसे पर्सन के साथ देना चाहता है जो या तो माइनर है या तो मैड है या तो एनी पर्सन जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस promisee is entitled to refuse that particular acceptance, and that cannot be called as a valid performance or attempted performance, and court will not accept the request of the promiser. So what it has been said, a tender by a minor or a idiot is not a valid tender. तो performance किसको देना है? Performance should be given either by the promiser or any person authorized by the promiser and accepted by the promiser. It must be made to proper person. The promisee or his duly authorized agent. Tender made to a stranger is invalid. Promiser अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं आपको 100 बैग्स की डिलीवरी दे रहा हूं, तो वो डिलीवरी मुझे किसको देना है? मुझे या तो आपके जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर एनी पर्सन जो आपका ऑथराइज एजेंट है। I cannot deliver the goods to some of your friend or any other person to whom जिसको आपने ऑथराइज नहीं किया है और मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां से डिलीवरी आप ले लो, तो यू कैन रिफ्यूज दैट डिलीवरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई केम विथ 100 बैग्स ऑफ शुगर इन जलगांव, आई एम स्टैंडिंग एट अजंता चौफुली, और मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर शॉप, फॉर एग्जांपल देयर इज अ होंडा शोरूम, मैं वहां पे डिलीवरी दे रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां से आप गुड्स पिकअप कर लो, तो यू आर नॉट, आई मीन लायबल टू डू दैट। यू कैन से दैट कि मैंने आपको बोला था कि डिलीवरी यहां चाहिए, आपने वहां डिलीवरी कोई स्ट्रेंजर को दे दी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एंड इन दैट केस आई विल बी लायबल फॉर डिफॉल्ट। यू कैन हेल्ड मी लायबल फॉर डिफॉल्ट, इन दैट केस आई कैन नॉट से दैट यू आर एट डिफॉल्ट, इन दैट केस आई एम एट डिफॉल्ट। देन व्हाट इट हैज बीन सेड, if there are several joint promises and offer to any one of them is a valid tender. Obviously, if there are n number of promises, for example there are 3 to 4 partners, तो मैं अपना परफॉर्मेंस अगर किसी एक पार्टनर के सामने दे देता हूं, मुझे डिलीवरी ऑफ गुड्स देना है, तो I cannot ask all the 4 partners to come and take the delivery. If I give the delivery to one of the party, one of the promiser, one of the joint promises in front of one of the joint promises, it will be called as a valid tender. That means I have performed my promise, and in that case you will be liable. जैसे कि मुझे डिलीवरी ऑफ गुड्स देना है, तो मैं किसी एक को फोन करता हूं और बोलता हूं कि गुड्स की डिलीवरी आप ले लो, और वो पर्सन को जो वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस है उसको मैं गुड्स की डिलीवरी दे देता हूं, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज अ वैलिड टेंडर, attempted performance, and then I will not be at default. Then there is, in case of tender of money, exact amount should be tendered in a legal tendered money. अगर पैसों का लेन देन है, पैसा देना है, that means मुझे आपको पैसा देना है। Now here I am changing my example. Now delivery of goods की जगह मुझे आपको पैसा देना है, तो in that circumstances I will have to give a valid tender. Obviously इलीगल टेंडर, पुराना 500 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। जो आज लीगल टेंडर है, जो न्यू 500 रुपीज का नोट है या 1000 रुपीज का नोट अभी आया नहीं है, 2000 रुपीज का जो वैलिड टेंडर है वो मुझे आपको देना पड़ेगा। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि आई एम गोइंग टू गिव द पेमेंट बाय चेक,
तो आई हैव टू गिव द परफॉर्मेंस बाय चेक. इफ आई टेक कैश और मैं आपको डिलीवरी देने की कोशिश करोगे, आपने 1 लाख रुपए बोला था, ये 1 लाख रुपए मैं कैश लेके आया हूं, तो यू कैन से दैट के बात चेक की हुई थी, तो यू ब्रिंग चेक, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर 1 लाख रुपीज इन कैश, तो आई विल बी लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर. What is the example there? Tendering a smaller or a larger amount is an invalid tender. That means tendering rupees 2000 currency note to a conductor of a bus of 10 rupee ticket is not a valid tender. This may be possible and it may create a number of confusion, but still यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह पे पता है कि एक पेनी अमाउंट लगने वाला है, तो यू शुड कीप दैट पेनी अमाउंट इन योर पॉकेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दुकानदार के पास जाते हो, आपने काफी बार महसूस किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मिल्क का बैग, दूध की थैली लेने जा रहे हो जिसका कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 1.5 लीटर ऑफ बैग इज 40 रुपीज. आप हाफ लीटर ऑफ बैग इज 40 रुपीज. आप वो दूध के शॉप पे गए, वो पर्टिकुलर शॉप पे गए और आपने उसको डिमांड किया कि एक आधा लीटर दूध दीजिए, तो आपको देता है और आप 2000 के नोट निकालते हो, तो वो आपको बोल देगा कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप 40 रुपीज चेंज लेके आओ और ये दूध बैग, यानी ही हैज अ राइट to refuse to deliver the goods. So in these circumstances you cannot hold that particular shopkeeper liable for non-delivery. आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते और बोल सकते कि मैं 2000 वैलिड टेंडर, जो 2000 रुपए लीगल टेंडर है मैं उसे दे रहा हूं, वो मुझे माल नहीं दे रहा है. उसका रिक्वेस्ट क्या है, वो क्या बोल रहा है आपको कि उसके पास चेंज नहीं है. चेंज है और अगर नहीं दे रहा है देन देयर इज अ डिफरेंट मैटर. चेंज नहीं है और आपको वो रिफ्यूज कर रहा है, तो इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू गिव द डिलीवरी ऑफ द गुड. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर वैलिड टेंडर देते हो तो जो मांगा है उसी में देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते हो तो ही इज एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. Similarly, a tender by a check is invalid and it is not a legal tender, but if the creditor accepts the check, he cannot afterward raise an objection. अगर सप्लायर ने बोला है कि मैं चेक नहीं लूंगा, सिर्फ कैश लूंगा, और आप उसको चेक देते हो, होता है ना बाज वक्त शॉपकीपर रिफ्यूज कर देता है. जैसे कि अगर आप डीमार्ट में जाते हो तो कार्ड का पेमेंट लेता है या सिर्फ आपसे कैश लेता है, ही नेवर एक्सेप्ट द चेक. तो वो बोलता है कि मैं चेक नहीं लूंगा. क्यों नहीं लूंगा? कि बिकॉज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के चेक में बाउंस, तो इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज चेक अगेंस्ट कैश. तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस वो बोला गया है कि अगर वो चेक को लेने से रिफ्यूज करता है तो देन दैट रिफ्यूजल विल बी वैलिड. लेकिन अगर वो चेक एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता है. वो बाद में ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने कैश बोला था, आपने चेक दिया, तो नॉन परफॉर्मेंस हुआ है, यहाँ पे आपने आपका परफॉर्मेंस भरा. अगर आपको रिफ्यूज करना था तो वही पॉइंट पे रिफ्यूज करना चाहिए था जब वो चेक लेके आया. वो चेक लेके आया और आपने चेक एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप उसको नॉन परफॉर्मेंस के लिए, आई मीन यू कैन नॉट टेल हिम दैट यू आर एट डिफॉल्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस. तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट विल बी रिगार्डेड एज वैलिड टेंडर. नाउ व्हाट इज द आउटकम ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है कि वन पार्टी इज रेडी टू गिव हिज परफॉर्मेंस, लेकिन सेकेंड पार्टी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. अब ऐसा सिनेरियो हो गया है, 100 बैग्स ऑफ शुगर में लेके आया लेकिन आप उसकी डिलीवरी नहीं ले रहे हो, और बाकी की जो कंडीशंस दी गई है कि परफॉर्मेंस इज अनकंडीशनल, देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू दैट, जहां पे इट इज एट अ प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, आई हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द गुड्स. दैट मीन्स आपने जैसा बोला वैसा मैं करने तैयार हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. तो इसका आउटकम क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? व्हाट दे हैव गिवन? Effect of refusal to accept a valid tender. Effect of refusal to accept the performance. Valid tender यानी मेरा परफॉर्मेंस आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? The effect of refusal to accept a properly made offer of performance is the contract. Is that the contract is deemed to have been performed by the promisor. That is, the tenderer and the promisee can be sued for the breach of the contract. What is an outcome?
इट विल बी अज्यूम दैट कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, दो आई हैव नॉट फुलफिल, लेकिन ये माना जाएगा कि अपना प्रॉमिस मैंने पूरा कर दिया। क्यों ऐसा माना जाएगा? क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने तैयार हूं, लेकिन आप मेरे प्रॉमिस को पूरा नहीं करने दे रहे हो, तो यहां पे माना जाएगा कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। एंड व्हाट इज दैट? A valid tender thus discharges the contract. मेरे बिहाफ पे ये मान लिया जाएगा कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, and from my side the contract is discharged. From my side the contract is discharged, and I'll go to the court of law against you for the recovery of the price of the goods, value of that particular contract. Together with that, I am also entitled to recover the compensation from the promisee for the loss of time, energy, etc. However, for doing that, all the conditions mentioned above, these are the conditions different mentioned above, it should be satisfied. कि my performance should be unconditional, it should be at a proper time, proper place. It should be, I should give an opportunity to the other party if it is as regards to delivery of the goods for verification of the goods. तो ये सब कंडीशंस जो आपके स्क्रीन पे दी गई है वो मैंने सेटिस्फाई की है, फिर भी आप मेरे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो देन आई एम एंटाइटल्ड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट मेरा साइड लेगा और आपको बोलेगा कि आप सामने वाले का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करो, पैसा दो, गुड्स लो, और जो भी कॉम्पेंसेशन होगा कोर्ट डिसाइड करेगा, वो कॉम्पेंसेशन मुझे आपसे मिलेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस दे हैव गिवन? टेंडर ऑफ मनी हाउएवर डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज मुझे आपको 1 लाख रुपए देना है और मैं आपके 1 लाख रुपए जलगांव लेके आया, लेकिन आप वो 1 लाख रुपए ले नहीं रहे हो। There may be any reason you are not accepting that 1 lakh. तो क्या इस केस में मान लिया जाएगा कि मैंने पैसा दे दिया? आंसर इज नो। गुड्स के केस में, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस के केस में ये हो सकता है कि देयर इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, लेकिन जहां पे पैसा देने का पार्ट है तो उस केस में कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रॉमिस। आपने कोई गुड्स मुझे दिए और मैं 1 लाख रुपए आपको देने आ रहा हूं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि पहले मैं 1 लाख रुपए दूंगा और फिर आप मुझे गुड्स दोगे, तो मैं 1 लाख रुपए लेके आया और आपको बोल रहा हूं कि 1 लाख रुपए लो और माल दो, लेकिन आप यहां पे 1 लाख रुपए ले नहीं रहे हो, तो क्या एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इट विल बी अज्यूम दैट माय प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म? तो यहां पे मॉनेटरी केस में नहीं चलेगा। इट विल बी नॉट अज्यूम दैट के द परफॉर्मेंस हैज बीन गिवन बाय द प्रॉमिसर। तो 1 लाख रुपए मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, आप ले नहीं रहे हो। देयर में बी एनी रीजन, आपको कोई दूसरा बायर मिल गया है, उससे ज्यादा प्राइस मिल रही है, जो गुड्स आपको देने हैं वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे से पैसा भी नहीं ले रहे हो, तो देयर में बी एनी रीजन। तो हियर इट कैन नॉट बी अज्यूम दैट आई हैव गिवन द परफॉर्मेंस। मैं कोर्ट में नहीं बोल सकता हूं कि मैं पैसा देने गया था, उसने पैसा लिया नहीं, तो आप ये अज्यूम कर लो कि मैंने पैसा दे दिया, वो माल दे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो मॉनेटरी केस में अगर मनी इन्वॉल्व है तो वहां पे कभी भी ये नहीं मानेगा कि देयर इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। द मनी विल हैव टू बी पेड इवन आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ द टेंडर, ऑफ कोर्स विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल। ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि मैंने पैसा दे दिया, बाद में पैसा मुझे देना पड़ेगा, लेकिन दैट विल बी विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि जिस दिन मैं लेके आया आपने उस दिन पैसा नहीं लिया, लेकिन बाद में आप पैसा डिमांड कर रहे हो, तो मैं बाद में आपको पैसा दे रहा हूं, लेकिन बाद में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल। इन केस ऑफ सूट, कॉस्ट ऑफ डिफेंस कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ इफ द टेंडर ऑफ मनी इज प्रूफ। अब इस केस में मैं 1 लाख रुपए लेके आया, आप 1 लाख रुपए ले नहीं रहे हो, तो वो क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ सूट, कॉस्ट ऑफ डिफेंस कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ इफ टेंडर ऑफ मनी इज प्रूफ। टेंडर ऑफ मनी यानी मैं पैसा लेके आया, आप ले नहीं रहे हो, तो उतना टाइम चला गया, आपने 1 लाख रुपीज नहीं लिया, तो 1 लाख रुपीज मेरे पास पड़ा रहा एंड आई हैव लॉस्ट दैट इंटरेस्ट। अगर मुझे आप माल जब दे देते थे तो वो माल बेच के मैं प्रॉफिट कमाता था, तो 1 लाख रुपीज पे मुझे ब्याज मिलना चाहिए। तो इन दैट केस आई विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द इंटरेस्ट एंड नॉट यू।
तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर इज वैलिड इन द केस ऑफ गुड्स और इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, बट इट इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। जहां पे मुझे पैसा देना है और आप नहीं ले रहे हो तो वहां ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि मैंने पैसा दे दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सेकेंड वन इज म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, then there is a lapse of time, then there is an operation of law, then there is a subsequent or supervening impossibility, and last there is a breach of contract. So this we are going to refer in the next lecture. So in today's lecture what we have learned about discharge of performance or discharge of contract is by way of performance. Performance are of two type. One is an actual performance, one is an attempted performance. Actual performance is जहाँ पे parties have given their performance, both the parties have given their respective promises, then it is called as an actual performance. मैंने पैसा दे दिया, आपने goods दे दिए, मैंने पैसा दे दिया, आपने आपका promise, you are a singer, you have performed your promise, you have performed your मैंने होटल में आपको एक कॉन्सर्ट के लिए बुलाया और आपने आपका परफॉर्मेंस दे दिया, मैंने आपको आपका पेमेंट दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या देखा है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में वन पार्टी इज रेडी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, दैट प्रॉमिस मे बी फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट प्रॉमिस मे बी फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ ए सर्विस, द पार्टी इज रेडी, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम रेडी टू परफॉर्म माई प्रॉमिस, और आई एम अ ट्रेडर, आई एम रेडी टू गिव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, but you are not taking the delivery of the goods or you are not taking the services of an architect even after entering into the contract. So these guys will be called as they are ready to perform the performance, but we are refusing to accept, it will be called as a valid tender, and you will be liable for non-performance and you will be liable for payment of compensation provided whatever conditions has been given has to be fulfilled by the promisor. Further, we have seen that in case of payment of money, it cannot be called as an attempted performance where the promisee refused to accept the amount. तो promiser के साइड से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, पैसा तो उसको हर हाल में बाद में भी देना पड़ेगा, but he may refuse to give the interest. So these are the rule as regards to discharge of contract by performance. I hope you have understood the concept. Remaining points we are going to cover in the next lecture. Bye everyone.